मेरे प्यारे भैनों, मेरे दोस्तों, आप सबनों मेरे वालों भगवंत सिंह वालों आप सबनों जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान, प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करता तुसीं सब राजी खुशी होवोगे। मैं अपने वालों ते अपने गैसट वालों आप सब दा कांशी टीवी दे उत्ते पते दी गल दे विच जी आयां करदा, स्वागत करदा। अज दे प्रोग्राम दे विच जो मैं पते की गल करनी चाहना कि वो किस्मतवाद की है, इस दे बारे गल करांगे कि किस्मतवाद की ये सानू उन्हां लोकां ने ही दिता होया जिन्हां ने सानू जातां पातां दित्तियां होईयां हैं। इस गल नूं पूरी तरह खोल के आपां गल करांगे किस तरह किस्मत है कि नहीं है, किस तरह सानू भुलेखिਆਂ 'ਚ पाया गया, इस दे नाल रिलेटिड असीं गल करांगे। उस दे विच मेरा साथ देने वाले मेरे प्यारे दोस्त जो इस टाइम आस्ट्रेलिया 'ਚ रहिंदे ने ते ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਬੂ ਗੁਗਨੈਣੀ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਬਾਬੂ ਗੁਗਨੈਣੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ UN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ 17 ਸਾਲ ਉਸ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਰਹੇ ਨੇ, 17 ਸਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਸਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ 'ਤੇ ਜੋ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਕਦੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਹੋ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ 20-25 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲੀਫਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਵੀ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਬਾਬੂ ਗੁਗਨੈਣੀ ਜੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, 5 ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं। सो बाबू जी वैसे तो हम हिंदी भी नहीं बोलते हैं, हम हैदराबादी बोलते हैं। हाँ ये किस्मतवाद है, जैसे मुझे जितना मुझे ज्ञान है उसके मुताबिक तो
मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये जिन लोगों ने हम लोगों को जात पात के बंधनों में, जात पात का जो संस्था है, जो वो राजपाट है वो दिया हम लोगों को, उसमें फंसा रखा है, उन्हीं लोगों ने हमको किस्मतवाद दे रखा है। मेरा ये सोचना है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आम आदमी को समझा सकें कि क्या है, कैसे ये जाल हमारे ऊपर बिछा रखा है इन लोगों ने। भगवान जी, बात ऐसा है कि हम हज़ारों सालों से ये नेचुरल डिज़ास्टर्स फेस कर रहे हैं। कभी कभी तूफ़ान होता है, बाढ़ आती है, कभी पानी नहीं आता है, कभी सूरज का ताप इतना ज़्यादा होता है, अनाज का प्रॉब्लम होता है। जब हमको इसके कारण पता नहीं है, ये ऐसा क्यों हो रहा है हम समझ नहीं पाए, तो हम इसको थोड़े नेचुरल फोर्सेस को हम दैविक रूप देना शुरू करें। और आप जब दैविक रूप देते हैं, आप वरुण के नाम से आप बारिश को एक भगवान बनाते हैं, या नहीं तो अग्नि भगवान बनाते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। तो आप जो है आपके आसपास में, समाज में या प्रकृति में कुछ भी अपने हाथ में नहीं रखकर कोई भगवान के पैर के पास, कोई शक्ति के पास आप उसको रख दे रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इन लोगों के मन में अपने जीवन पे कुछ कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल के लिए वो हो सकता है एक रंगीला धागा पहनते हैं, उसको तालिस्मान बनाते हैं, सूत्रधार, या नहीं तो एक पर्टिकुलर जेमस्टोन का अंगूठी पहनते हैं। ये सब इनका क्या है, वो सोचते हैं कि ऐसा करने से प्रकृति के डेवलपमेंट्स को ये इन्फ्लुएंस कर सकें। ये तो अज्ञान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जब कभी इंसान को अपने लाइफ पे कंट्रोल नहीं है, ऐसे ही होता है। तो देखिए, अब जब किस्मतवाद के बारे में बात करते हैं, लोग सोचते हैं कि हमारी पूरी भविष्य किसी और ने रच दिया है। बोलते हैं ना, साउथ इंडिया में तो बोलते हैं लिख दिया, माथे पे लिख दिया, माथे पे लिख दिया है, दाने दाने पे अपना नाम है, इसीलिए वो हम खा सकते हैं। हर जिसका नाम नहीं लिखा भूखा मरता है, भूखा मरता है। वाह जी। तो ये अज्ञान से जो भावना है, हजारों साल पहले जो स्टार्ट हुए हैं, आज भी उनको रखना तो मेरे ख्याल से एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। आज नहीं रहना चाहिए। हम सब स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम साइंस सीखते हैं, ये आज की सोच नहीं है। और जो भी टेलीविज़न पे आकर इसके बारे में, इसके पीछे विज्ञान है बोलकर झूठ बोलते हैं, ये सब तो क्रिमिनल एक्टिविटी है। और हम तो ऐसे लोगों को कितने लोगों को पकड़ा नहीं। और बर्मिंघम में, इधर बर्मिंघम रैशनलिस्ट, एशियन रैशनलिस्ट एसोसिएशन जो बर्मिंघम में है, एशियन रैशनलिस्ट सोसाइटी, दुनिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसी आपकी। 2 ज्योतिषियों को आप जेल भिजाएं, 3 को। देखिए, दुनिया में कम से कम 1000 रैशनलिस्ट तर्कवादी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये आपने जो किया किसी और ने नहीं कर पाया। हम उनको टीवी स्टूडियो में हराया है। या इधर का कानून है, उसका साथ हमको मिलता है। कानून का एडवांटेज लेना समाज के लिए जो आपने किया, वो तो मैं बधाई देता हूँ। हम सब के लिए इंस्पिरेशन है जो आपने किया है। लेकिन बात यह है, भगवान में बिलीफ रखते हैं लोग, शकुन को ढूंढते हैं और सोचते हैं कि पूजा से भगवान की इच्छा को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये तंत्र यज्ञ से आप आदमी के भविष्य को पूरा बदल सकते हैं। ये जो गलत सोच है, इसके तो विक्टिम हज़ारों लोग हैं और धोखा खाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। बीच में रोकता हूँ आपको, वो ये भी बोलते हैं कि जो ऊपर से लिखा है उसको कोई मिटा नहीं सकता।
और बोलते हैं कि पूजा से बदल जाएगा। पूजा से बदल जाएगा। कैसे लोगों को, जैसे जहाँ पे आप बैठ जो चाहेंगे वही वो करते हैं लोग, डराने के लिए। वो है कि जो लिखा मिटेगा नहीं, आपके पास आपकी जेब में से पैसा निकालने के लिए करेक्ट वो कर देंगे। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3-4 महीने में कई ज्योतिषियों को पकड़ा गया। ये सब धोखेबाज हैं, तो इनको पकड़ना पड़ा। तो पुलिस गए हैं, उनकी बयान को ले लिया है, रिकॉर्ड करे हैं, और पता चला कि ये तो धोखा दे रहे हैं। ये ज्योतिष एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि एक ज़माने में भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में लोग जब ज्योतिष बोलते थे, उसका मतलब वो ज़माने में था ये हमारे खगोल का विज्ञान, धरती का खगोल, नक्षत्रों का, हमारे नक्षत्रों का, ब्रह्मांड का, एक ज़माने में। उसके बाद वो नॉलेज के साथ फलित ज्योतिष, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसका आविर्भाव हुआ है। तो ये ज्योतिषी आकर आपको बताएंगे कि वो जानते हैं आपके भविष्य में क्या होने वाला है, और उनको ये भी पता है कैसे वो भविष्य को बदल सकते हैं। जिसको भगवान ने रचा था, ये ज्योतिषी, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, वो बताता है कि वो भगवान की इच्छा को बदलने के लिए आपसे 1000 पाउंड लेकर, 2000 पाउंड लेकर आपके नाम पर पूजा करेगा, पूजा करके ये सब बदल देगा। तो क्या भगवान की इतनी कम शक्ति है कि कोई एक अनपढ़ वो भगवान के इच्छा को बदल सके? और एक ज़माने में तो ये बात सही है, चीन में बेबीलोनिया, जिसको हम आज इराक कहते हैं, ईरान कहते हैं, इजिप्ट में और हमारे हिंदुस्तान में, इन सब सिविलाइजेशंस में उन्होंने ये ग्रह का भ्रमण को ऑब्ज़र्व किया है, उसके नोट बनाए हैं, और एक्लिप्स कब आता है, कितना टाइम रहता है एक्लिप्स, ये सब वो जानते हैं। उनकी हज़ारों सालों की ऑब्जर्वेशन से कुछ ज्ञान उत्पादन की कोशिश में उन्होंने कई नए चीज़ बताए हैं उस ज़माने के लोगों के लिए, आज के लिए नहीं। आज तो हम चंद्रमा के ऊपर भारत देश से तीसरे बार सैटेलाइट की प्रयोग किए हैं, लेकिन देश ऐसा है, चंद्रमा के शैडो से लोग डरते हैं। एक्लिप्स का, ग्रहण का मतलब क्या है? उसका शैडो गिर रहा है, लेकिन उसको देखकर डरते हैं, घर में अपने आप को बंद कर लेते हैं, कभी ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाते हैं डर से, खाना नहीं खाते हैं, फ्रिज को ख़त्म कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं सभी चीज़। तो अज्ञान का एक लेवल पे ये पागलपन, दूसरे लेवल पे सीरियस प्रॉब्लम्स। अभी ज्योतिष से कंसल्ट करे बिना आजकल तो शादी भी नहीं हो रही है। आप जातक फल से शादी कर रहे हैं या और एक इंसान से शादी कर रहे हैं? और शादी भी देखो, वो आपको बीच में माफ़ करना रोकता हूँ कि पटियाला की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ के एक, जैसे आपने बोला, एक ज्योतिषी जिसकी 3 लड़कियाँ थीं, उसने अपनी ज्योतिष विद्या और षड्यंत्र विद्या से उनकी कुंडली बनाई और शादी कर दी। आपको शायद सुनकर ये हैरानी होगी, उसकी 3 बेटियां, मुझे माफ़ करना, आप 100 साल बच्चियों के लिए उनका डिवोर्स, उनका तलाक हुआ। वो एक मशहूर पटियाले का वो ज्योतिषी है। और ये ऐसा, वो अगर अपनी ज़िंदगी को ठीक नहीं कर सकता, जो अपनी ज़िंदगी ठीक नहीं सकता थोड़ी कितना कर दूंगा, जिहदी अपनी बच्चियां दियां तलाक हो गए हैं। सो ये सारा कुछ हैगा जिहड़ा असल च विच सिर्फ तो सिर्फ वो लोगों लिए है जिहड़े लोग बिल्कुल सोचते नहीं गए। मैं माफ़ करना गुस्सा कलीवा भी सानू सोचने की आदत पाउणी पईगी। ये जिहड़ा षड्यंत्र है, ये जिहड़ी ज्योतिष विद्या नहीं अविद्या है, ज्योतिष अविज्ञान है, कोई विद्या नहीं है। कोई जो कि इस टाइम भारत सरकार का पूरा जोर लग्या है कि लोगों को मुड़ के मनु स्मृति ज्योतिष विद्या ये लोगों के विच लियांदियां जाण, लोगों को मुड़ के वो जिहड़ा किस्मतवाद है
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। इतना ही नहीं, ज्योतिष जो है वो जातिवाद के फर में है, ज्योतिष में ही जातिवाद है। बिल्कुल। देखिए एक ज़माने में, ये भारत की बात है, ये ईरान, इराक, इजिप्ट, चीन में जातिवाद नहीं है, ऐसी नहीं है। लेकिन हमारे पास जब आप ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो हमको बताते हैं कि हमारे पास नवग्रह हैं। ये नव ग्रह हैं। इनमें से पहली ग्रह उनके मुताबिक वो है सूरज। लेकिन हम तो जानते हैं सूरज ग्रह नहीं है, वो तो तारा है, नक्षत्र है। दूसरी वो चांद माँ को बताते हैं और आपको बताते हैं कि ये भी एक ग्रह है, लेकिन हम सब जानते हैं वो उपग्रह है, धरती का टुकड़ा, धरती का टुकड़ा है, धरती के पास में है, इसके घूम रहा है, इसके इर्द गिर्द घूमता। करेक्ट। और ये बाकी के जो है मंगल या शुक्र या शनि, कितने लोग जानते हैं कि सूरज को क्षत्रिय बनाया गया है और अच्छा, और चांद माँ को वैश्य बनाया गया है। और कई लोग समझ नहीं पाते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या है। आपको सबको शनि के नाम से डराते हैं, है ना, आपके पास शनि है। इंडिया में तो, वहाँ भारत में तो उत्थे अपने रेल सड़कों के लाइटों से सवेरे शाम हो लेकर घूमते हैं, तेल डालो, उनके पास वो एक गढ़ होता है, एक पतीले जैसा छोटा सा गढ़ भी बोलते हैं हमारे पंजाबी में, वो उसमें बोलता है कि इसमें तेल डालो, शनिचर देवता का प्रकोप उसका कम हो जाएगा, काम डाउन करेगा। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि शनि ग्रह का जाति शूद्र है। अच्छा, तो ये आज मुझे पहली बार पता लगा। मैं भी ये हम जानना चाहिए। हाँ, जो ग्रह ठीक और अच्छे काम करते हैं वो ब्राह्मण ग्रह है। सूरज ब्राह्मण हो गया, सूरज क्षत्रिय, सॉरी क्षत्रिय हो गया, और चांद्रमा वैश्य हो गया, शुक्र अंगारक, जो लोगों को डराने के लिए हैं वो सभी शूद्र हो गए। ब्राह्मण ग्रह जो है आपको अच्छा करते हैं, सब ठीक करते हैं। और शुद्ध ग्रह उनमें से एक ही है शुद्ध ग्रह, वो है शनि। अच्छा। तो देखिए जिस जमाने में ऐनक भी नहीं था, जिस जमाने में कोई टेलीस्कोप नहीं था, वो हॉरोस्कोप बनाते थे। तो वो आकाश में उनको क्या दिखता था? एक सूरज, एक चांद जो परिक्रमा करती है आकाश में, और आसमान में उनको साथ ही साथ 5 और ग्रह दिखे। तो जो मार्स बोलते हैं, वीनस बोलते हैं, जिसको हम मंगल ग्रह बोलते हैं, ये सब आसमान में एक मूवमेंट दिखाते हैं, ताकि नक्षत्र का मूवमेंट नहीं रहता है। तो हमारे पूर्वजों ने सूरज और चांद्रमा के साथ ये 5 ग्रह को मिलाकर 7 ग्रह का एक यूनिवर्स की कल्पना की है। इसके साथ साथ पौराणिक कैरेक्टर्स जो है राहु और केतु, ये सबको मिलाकर नवग्रह बनाए। जानते हो आप, ये नवग्रह में हमारी पृथ्वी जो ग्रह, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, वो नवग्रह में नहीं है। ज्योतिषिया की देखो कि बड़ी चाल। वो कहते हैं भी जोड़े नक्षत्र ने, ਆਪਾਂ पता नक्षत्र कहने आप पंजाबी, जो पंजाबी का लफ्ज़ है ना अपना नक्षत्र सिंह तो नक्षत्र कौर या होर मेरे भैन वीर का नाम, वो नक्षत्र तो बनया है। नक्षत्र लफ्ज़ है, नक्षत्र जोड़ा ग्रह ने। अच्छा, वो कहते भी 9 ग्रह ने, नव ग्रह, नव तो हिंदी के 9 है। और ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਭਾਰੂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, 9 के बीच में गिनते नहीं हैं। उसमें हमारी ग्रह पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं वो नहीं है, उनके 9 ग्रह। तो देखिए इनकी एक क्रिकेट टीम, 9 ग्रहों की जो क्रिकेट टीम है इनकी, अच्छा, इनमें
एक तो सूरज है, वो तो ग्रह नहीं है, एक तो चांदमा है, वो ग्रह नहीं है, छोटा ग्रह है। और आप देखिए राहु और केतु तो नहीं है, वो हमको भी नहीं दिखती है, ज्योतिषियों को भी नहीं दिखती है। तो आपके पास कितने बचे हैं आज? और धरती भी निकाल दी। धरती भी निकाल दी, और इनको तो जातिवाद के अनुसार इनको बांटा गया है। इस अज्ञान को, इस रुग्मता को लेकर वो ज्ञान बताते हैं। और क्या ये ज्योतिषी, ये जिनको आज बता रहे हैं भारत में, हमारे मिनिस्टर्स भी बता रहे हैं कि ये तो ज्ञानी है, इनको सब पता है, क्यों इनकी ज्ञान इतनी लिमिटेड थी कि वो सिर्फ उसको ज्ञान, नॉलेज ज्ञान, हाँ, क्या वो केवल जो आंख से दिखता है वही पता करते हैं? अगर ज्ञान हो तो उनकी सोच में, उनकी कल्पना में जो आज टेलीस्कोप से दिख रहा है वो भी उनको पता रहना चाहिए। नहीं था उनको। तो प्लूटो ग्रह जो है, ये पिछले 200 साल में प्लूटो, नेपट्यून और यूरेनस, ये 3 ग्रह, जिसको वरुण ग्रह और कुछ और कहते हैं, इनकी जांच हुई है, इनको इन्होंने पाया गया है। उनको बीच में मिला लिया। तो ये हॉरोस्कोप वाले टेलीस्कोप के इंतज़ार में है। जब आपको टेलीस्कोप हाथ में आता है, टेलीस्कोप से आप कुछ देखते हैं, वो इमीडिएटली संस्कृत में उसका एंट्री कर लेते हैं। इतना भी किए बाद अभी तो विज्ञान शास्त्र 9th ग्रह जो है प्लूटो, उसको निकाल दिया है ग्रह से। तो अब ये ज्योतिषी क्या करेंगे? इनके पास तो 9 है, उसमें पृथ्वी नहीं है, अभी प्लूटो भी नहीं है, राहु नहीं है, केतु नहीं है, और वो तो एक तारे को लेकर उसको ग्रह बना दिया, एक उपग्रह को लेकर उसको ग्रह बना दिया। कंप्लीट नॉनसेंस। इसका मतलब यह कि ऐसे हुआ कि जो ग्रह इन्होंने पिछले 200 साल में टेलीस्कोप, दूरबीन की मदद से जो देखे हैं, उनको अपने शास्त्रों में भर लिया और बोल दिया कि 2000 साल पुराने हैं। करेक्ट। तो ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं जो। तो ये दोस्तों, मेरे वीरों, मेरे भैनों, जिद्दां पहला मैं गल कीती है बई ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਘਨੇੜੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ, ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਦ ਚੱਕਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆ ਕਿ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਹਦੇ ਜੰਮਦੇ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੇਟ ਧਾਰਦੀ ਆ, ਗਰਭ ਧਾਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੜੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। माफ़ करना, हाँ जी बाबू जी, समझ रहा हूँ। तो ये भी हमने पाया है कि ये ज्योतिष्य लोग इतने पागल हो जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं और सोचते नहीं हैं। स्कूल में जो, पाठशाला में जो उन्होंने सीखा है वो भूल गए। तो कोई भी धोखेबाज कोई आकर आपको ये बताया तो वो मान लेते हैं। मान लेना एक चीज़ है, उसके बाद अपनी जीवन को पूरा बदलते हैं एक ऑलमोस्ट अनपढ़ ज्योतिषी के एडवाइस से। तो आप कभी फिल्म जाते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं,
5 बार 10 बार सोचते हैं आप उसका क्या कंसल्टेशन फ़ी है, कैसा रहता है। आप एक टीवी खरीदने जाते हैं तो उसके बारे में 4 लोगों को पूछते हैं आप कैसा काम करता है, अच्छा है या अच्छा नहीं है। कार खरीदते हैं तो आप पूरा जांच करते हैं उनके बारे में। ज्योतिषी के बारे में आप जांच नहीं करते और वो आकर बताएंगे आपको, देखिए चांद माँ के कारण ये ओशन समुद्र में ज्वार भाटा उतरा चढ़ाव आता है। करेक्ट। 24 घंटे में, यहाँ 24 घंटे में वो उतरेगा चढ़ेगा। अपर टाइड लोअर टाइड ये आता है, पानी ऊपर चढ़ना और नीचे आना। तो वो बताते हैं देखिए ये चांद माँ के कारण हो रहा है, वैसे ही हमारे पर भी उसका इन्फ्लुएंस है। तो ज्योतिष करेक्ट है, लेकिन ये बात वो नहीं सोच रहे हैं, बतलाता नहीं है। आप कोई रिलेशन ही नहीं है। जो आप पानी के बारे में बात कर रहे हैं, जो समुद्र के पानी के बारे में बात कर रहे हैं, आप बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो इतना सारा जल के ऊपर चांद माँ का इफेक्ट वैसा है। तो वो बोलते हैं लेकिन आदमी के, इंसान के शरीर में भी 70% पानी है, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करें, किसी की उंगली कटी तो पानी बाहर आता है या खून आता है? और आदमी में कितना खून रहता है? अगर 100 किलो का आदमी वज़न का है तो अगर 70% पानी है तो 70 लीटर पानी बाहर आना चाहिए। क्या आदमी में उतना है? नहीं है। हमारे सेल्स में वो पार्ट ऑफ द सेल स्ट्रक्चर में है। अच्छा, अगर चांद माँ के कारण हमको पानी का ऊपर नीचे होने का जो समुद्र में पा रहे हैं वो होता है, तो क्या इंसान के अंदर भी होते रहता है क्या पानी या खून? नहीं होता है। ये बात सोचते नहीं हैं लोग। और ठीक है, मान लेंगे कि ये जल की उत्पात और कम होना होता है चांद माँ से, तो उतना ही इफेक्ट है ना। हमारे भविष्य पे क्या इफेक्ट होगा? मेरे एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसे मालूम होगा इसके कारण? शादी का सक्सेस, शादी का फेलियर, या किसी के हेल्थ के बारे में चांद माँ का इन्फ्लुएंस केवल, अगर सच हो, वो झूठ है मान लेंगे, वो जो भी बोल रहे हैं वो तो सिर्फ ऊपर नीचे होने का इफेक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो लोग नहीं सोच रहे हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਹਿੰਦਰਾ जी। हाँ जी, जी आया नु। अरे आप दोनों की बहुत अच्छी डिस्कशन चल रही, क्या बात है, ये लोगों को अंधेरे से बाहर निकाल रहे हो, क्या बात है, मेहरबानी आपकी। अच्छा, ऐसे ही एक दोस्त ने मुझे ये लेकर दिया था, मैंने सोचा कि आपको सुना दूं। ये जी है, हाँ, ये है, कहता है ये ऐसा देश हमारा है, अल्लाह राम रहीम वाहे गुरु का। हाँ हाँ जी, ढूंढे लोग सहारा है। ढूंढे लोग सहारा है। हाँ हाँ, कोई भूखे का हाथ ना पकड़े, मुंह में नहीं नवाले, गली गली में घूम रहे हैं देश लूटने वाले। हाँ हाँ, बिल्कुल। मंदिर में जा टल खड़काए, हाँ, जो कातिल हत्यारा है, ये ऐसा देश हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। सुबह शाम हाथ पकड़ के माला, आरती गाने वाले, चोरी निंदा जुल्म करो ना, ये समझाने वाले, उनकी मौज, उनकी मौन समाधि के नीचे चलता उनका कारा है, ऐसा देश हमारा है। बिल्कुल बिल्कुल। शक के मुंह में, सच के मुंह पर चार मखौटा, बैठे धर्म द्वारों में,
जिसकी जिस देवी की करते पूजा बिकती है बाजारों में, गली गली में पंचाली का कौरवा गाउन उतारा है, बिल्कुल। ये ऐसा देश हमारा है। बहुत 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 बढ़िया। कहते हैं आज भी देश के लाखों जनता सड़कों ऊपर सोती है, एक वक्त की रोटी खातर रोज बिलकती रोती है, पर पग पग पर है धर्म द्वारे, फिर भी किस्मत मारा है, ये ऐसा देश हमारा है, ये ऐसा देश हमारा है। हाँ जी, ये थी मेरी कविता। हाँ जी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, रोटी खाण ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਦਵੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। हाँ जी, बहुत बहुत ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਨ ਦਾ। थैंक यू सर। I have one. हेलो जी, नहीं ड्रॉप होगी कॉल। तो मेरा ये प्रपोजल है, अगर हम ज्योतिषियों को हराएंगे तो उनको हम चैलेंज करना पड़ेगा। हम आपस में बात करेंगे, हम लोगों को साइंस सिखाएंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन ज्योतिषी करेक्ट बोल रहा है या नहीं, उसको भी हम देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हार उधर है। उनकी हार उनकी अज्ञान में ही नहीं, उनकी हार उनकी असफलता में भी है। फ्रॉड में, उनके फ्रॉड में, षड्यंत्र में। देखिए, हमने तो एक कौन बनेगा करोड़पति चैलेंज कंपटीशन लॉन्च किया इनके खिलाफ। अच्छा, हमने कहा, एक तो वो अमिताभ बच्चन का करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति, और आपने चला रखा। मेरी भी है, आपने चला रखा। अच्छा, बहुत और अच्छा। हमने कहा, हाँ, ये 2009 की बात है, हाँ, इलेक्शन, उसके बाद 2014 में इलेक्शन। तो हमने कहा हमारे पास 25 क्वेश्चंस हैं और ये 25 सवाल है हमारे पास, प्रश्न है। ये सवाल के आप उत्तर देना पड़ेगा, और अगर आप 25 में 20 भी ठीक करेंगे तो आपको हम एक करोड़ रुपया देंगे। वाह। तो हमने पूछा कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन उसके साथ साथ कितने सीट आएंगे उनके तो ये ज्योतिषी से पूछा आप लोगों ने? जी हाँ। जो लोग बोलते हैं ना कि भविष्यवाणी करते हैं, हम भविष्य तलाशते हैं, उनको बुला कर इन लोगों ने प्रोग्राम में बुलाया कि अगर आप 25 में से 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਦਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ प्रोग्राम सी, मैं भी देखा। हाँ जी। और ये तो 3 टीवी चैनल हमारे साथ पार्टनर किए हैं इसमें। तो सारे लोग जानते थे कि ये तर्कवादी ऐसा एक सवाल दिए हैं ज्योतिषियों को कि इसके आंसर देना चाहिए। तो हमारे 25 सवालों में 4 सवाल झूठे बातों पे थे। हमने तो लिख दिया एक पार्टी का नाम जो है ही नहीं, वास्तव में ऐसा कोई पार्टी है नहीं। और ज्योतिषी वो भी कहते हैं, उनको भी ज्योतिषी वोट्स दिए हैं, सीट्स दिए हैं। तो ये अज्ञानी, ये धोखेबाज लोग कम दिमाग के भी हैं। तो ये 21 क्वेश्चन करेक्ट क्वेश्चन थे, 4 तो मिसलीडिंग, झूठे थे, वो है ही नहीं थे। और उसको तो उन्होंने उनको वोट दिए हैं, उनको सीट्स दिए हैं पार्लियामेंट में। और ये बात देखिए, ये 21 सवालों में केवल एक ज्योतिषी को एक आंसर करेक्ट आया है। वाह, देखो। तो एग्जाम में इसको बोलते हैं 5%। पास होने के लिए 35%, 40%, 33% चाहिए हमारे पंजाब में। बिल्कुल। तो इनको हम ऐसा चैलेंज करेंगे, उनको सवाल देंगे और उनको आंसर देने की मौका देंगे, मालूम हो जाएगा। तो मेरे सवाल की स्पंदना से लोग टीवी चैनल पे आए हैं और खुद के भविष्यवाणी सुनाए, वो सब कंप्लीटली लॉस पे है। उसके बाद उनके पास कोई गया भी नहीं, क्योंकि वो हार गए थे। तो जब उनको मालूम पता चला कि अगर वो चैनल पे जाएंगे और एक बहस में पार्टिसिपेट करेंगे तो लोग, उनका बिजनेस बढ़ेगा, वो इच्छा से वो आए हैं, से आते थे। लेकिन वहाँ तो जूते पड़े इनको। वो उधर ट्रैप लगा, वो उनको ये नहीं चूहे की तरह रोटी देख ली, लेकिन ट्रैप को नहीं वो नहीं देखा।
हाँ। तो वो आना बंद कर दिए हैं अभी चैनल पे नहीं आते हैं, डरपोक है वो, डर गए हैं। अज्ञानी है, वो धोखेबाजी है, कम दिमाग है और वो डरपोक भी है। जीवन को आप कैसे फेस करें, हिम्मत से करें और अपनी ही खुशी से करें और सोचकर प्लान बनाएं। जो वास्तव चीज़ है, जो रियलिटी है, उसके ऊपर अपनी भविष्य प्लान्स हम खुद बनाना चाहिए। राहु केतु नहीं है, सूरज तो ग्रह ही नहीं है, और ये जातिवाद के नाम से जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए सो ग्रह है, वो आपके बारे में क्यों सोचेंगे? एक भी आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, हमारे सौर मंडल में जो हमारी प्लानिटरी सिस्टम, सौर मंडल ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਆਪਣਾ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਸ਼ਨੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। सोलार, हाँ जी, सोलर सिस्टम, हाँ। इसमें से 260 चांद माह है। हमारी पृथ्वी की एक है, लेकिन जुपिटर के 65 है। तो आप सब चांद माह को गिनेंगे तो उनमें से आप केवल एक की इन्फ्लुएंस के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके पास पता ही नहीं, दूरदर्शी नहीं, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हम मन में रखना चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। और मैं साथियों को ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे पास कई ज्योतिषी ऐसे टीवी चैनल पे आए, हार कर चले गए हैं, क्योंकि अपने पास साइंस तर्क है, उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रा ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, उनके पास कुछ नहीं, उनके पास आपकी डर है, उनके साथ आपकी डरपोकता और उसके साथ आपकी अज्ञान उनके साथ है। वो उनका स्ट्रेंथ वो मिल है। जाता है। तो आप केवल स्कूल में, पाठशाला में आप क्या सीखे हैं उसके बारे में सोचिए, आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है। दोस्तों, जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੋਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੀਫਲੇਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਾ ਚੜ੍ਹਿਓ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਾ ਆ, ਛੱਲ ਆਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਕੰਪ ਦਾ, ਅਰਥਕੁਏਕ ਦਾ, ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਸ਼ੀ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ भी मेरी गल बाबू गोविंद जी, वो इसको विज्ञान बोलते हैं, ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। हाँ। और वो ये भी उनकी वो जो लीफलेट बांधते हैं उसमें ये भी लिखा हुआ है कि वो लॉटरी के नंबर भी बताते हैं। हाँ जी, तो आप इस पे भी जरा रोशनी डालो। हाँ। तो वो विज्ञान कैसे बताते हैं, या फिर वो कुंडली निकालते हैं कंप्यूटर से इसलिए विज्ञान बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताना प्लीज। थैंक यू। देखिए जी, उनके जो प्रेडिक्शंस हैं वो प्रेडिक्शंस कोई भविष्यवाणी। थैंक यू थोड़ा प्रिंसिपल जी, बहुत बहुत थैंक यू थोड़ा। तो उनके जो प्रेडिक्शंस हैं उसके लिए वास्तविक निजी रूप से कोई बेसिस नहीं है। तो ये बात बताने के लिए मैं खुद भविष्यवाणी देना शुरू किया।
और मुझे तो ज्योतिष्य का कोई एजम्पशंस की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो क्षत्रिय सूरज की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो शूद्र शनि की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो ब्राह्मण बृहस्पति की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अगले 45 दिन में पृथ्वी पर एक बड़ी भूकंप आने वाली है, और बिल्कुल मेरे कहने के 10 दिन या 11 दिन के बाद अफ़गानिस्तान में एक बड़ी भूकंप आई है। मैं कैसे बताया ये? मैं ऐसा, मेरे पास ये ज्ञान है कैसे भूकंप और कितने बार होती है। तो ये रिक्टर स्केल 7 से ज़्यादा, उसका मतलब बड़ा भूकंप हमारे पृथ्वी पर कम से कम 15 बार आती है हर साल में, कम से कम। इसका मतलब रफली हर 30 दिन में कहीं ना कहीं एक तो आती है, पक्का आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये भूकंप समुद्र के अंदर आते हैं, लेकिन पृथ्वी के सरफेस पे भी आते हैं, और जैसे कि मैंने कहा वही हुआ। ये ज्योतिषी आकर आपको बताते हैं अगले 6 महीने में एक पॉलिटिशियन की मौत होगी, एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन की मौत होगी। तो मैंने एक दिन बैठकर भारत हिंदुस्तान में कितने पॉलिटिशियंस हैं इनकी गिनती की। हमारे पास 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में आप पूरे MLAs को MLCs को मिलाएंगे तो वो तो 7,000 लोग बनेंगे। तो ये सब तो मुख्य पॉलिटिशियंस हैं, ये तो इलेक्टेड हैं, ये तो राज्यसभा में, बड़े आदमी लोकसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये शामिल हैं। इसका मतलब ये बड़े लोग हैं। तो ये 7,000 लोग हमारे देश में, जब आप पॉलिटिशियन बनते हैं यूजुअली युवा लोग नहीं रहते हैं, ये तो बूढ़े लोग की है। बूढ़े लोग 40 से ऊपर ही पॉलिटिक्स में जाता आदमी। करेक्ट। तो 60 साल के बाद हमारे देश में लोग मरना शुरू करते हैं। तो इनमें से ये सैंपल में बूढ़े लोग काफ़ी कोई ना कोई तो मरे। 7,500 में से एक ना आधा कोई ना कोई तो मर ही जाएगा। इतना आसान है ये बोलना। तो मैंने कहा देखिए अगले 12 महीने में 3 ज्योतिषी मर जाएंगे। अगर उनको मुश्किल पड़ गई होगी। और मैंने कहा क्योंकि हमारे ज्योतिषी कितने हैं, लाखों लोग हैं देश में, अगर 7,000 लोगों में एक मर जाएगा तो लाखों में तो पक्का 10 दिन में मर जाएगा ना कोई। 3 लोग मरेंगे। तो मैंने कहा इतना ही नहीं, इनके नाम में स्पेलिंग में V रहेगा, S रहेगा, T रहेगा, ऐसे मैं रैंडम 5-6 लेटर भी बता दिया। पंजाब में तो कहते हैं उसके नाम में GH आएगा तो पक्का ही है, फिर तो और लाल आएगा, देव आएगा, कोई जो मर्जी बोल दो मरेगा कोई ना कोई। तो मैंने कहा आपके नाम में अगर B रहेगा और D रहेगा तो ये ज्योतिषी का एक प्रॉब्लम है। जो आपके हैदराबाद के उस एरिया में तो D और B तो हर नाम में होगा। 5 महीने के अंदर ही भारत के अत्यंत मशहूर ज्योतिष बेजान दारू वाला, उनकी मौत हो गई। और आपके भविष्यवाणी कोविड से। मैंने तो ऐसे ही एक मजाक में बताया, लेकिन करेक्ट निकले हैं। 3 ज्योतिषी मर गए हैं। और एक ज्योतिषी था जिसने कहा था कि उसके पास 99% करेक्ट आते हैं, तो ऑलमोस्ट फुल परसेंटेज सक्सेस। बेचारा वो भी मर गया। हम हंसने करते क्योंकि वो आदमी का मौत है, लेकिन होता है। हाँ। लेकिन बात ये है हम कुछ भी भविष्यवाणी दें, थोड़ा दिमाग से दें तो वो करेक्ट ही होगा। दोस्तों जिस तरह माफ करना भाव ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲਗਭਗ 90% ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਉਹ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਠੱਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਰੋਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ?
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸਟਰੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 3:15 ਵਜੇ ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੀ 9 ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਟਾਹਣੀ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟਾਹਣੀ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਾਕਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਆ, ਟਾਹਣੀ ਨਾ ਕੱਟ, ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੂਰੇ ਗਿਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਟਾਹਣੀ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਪਟਾਕ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਹਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਕਲ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਟਾਹਣੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਦੂਜੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ? ਕਾਲ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੋਈ। ਤੇ ਹੈਲੋ ਜੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਜੀ ਕਾਲ ਡ੍ਰੌਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ 7,500 MLAs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ MP ਹੈ ਪਾ ਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7,000 ਪਾਉਂਡ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਛਡਾਓ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 360 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 1,000-2,000 ਨਹੀਂ 1.5 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ 70,000 ਪਾਉਂਡ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। तो हाँ जी बाबू जी, आप आखिर में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो सबको मेरी ये इनविटेशन है, सवाल पूछिए, अगर आपको दिखता है तो देखिए। मैं एक ज्योतिषी को स्टूडियो में सवाल किया है और 1 घंटे की बहस के बाद वो सलाम कर भाग गया और कहा मेरे को ज्योतिष नहीं आता है, आप इनकी बात सुनिए, इनको पता है। मेरा इमेज भी आपको दिखता है। सवाल करेंगे तो डरपोक भाग जाएंगे। वो भाग गया था चैनल से। और मोर डेंजरस, जब आप ज्योतिषी के पास क्यों जाते हैं? आपको कई मुसीबतें हैं, आपको क्या करना पता नहीं, आप बहुत वल्नरेबल है, वीक हैं आप, तो आपकी एडवांटेज लेते हैं। और जब कभी महिलाएं जाती हैं, उनके तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, शारीरिक शोषण करते हैं। स्त्रियों की शोषण तो थोड़े ऐसे लोग हैं ज्योतिषी जो कहते हैं कि औरत बिना कपड़े उसके पास बैठना चाहिए जब वो पूजा करता है, जब वो शर्त उन लोगों की शर्त है ये। हाँ, उनकी शर्त है, अगर आपको बैठना है हमारे साथ ऐसा। हाँ, तो ये
शोषण भी होती है, धोखा भी होती है। इसके बजाय आप सोचिए, विज्ञान के बेसिस में आपके सभी को प्रॉब्लम्स हैं, आपको भी रहते हैं, हमारे पास भी रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका साइंस की तरीका है, विज्ञान की तरीका है, वास्तव रूप से देखने की है। आप काल्पनिक युग में रहकर अपने ही दुनिया में रहकर सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप इफ़ेक्ट हो जाएंगे, नुकसान पहुंचेगा आपको, इसीलिए सोचना पड़ेगा। बस इतना तो याद रखिए, इसमें कोई ज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, इसमें तो झूठ है और अज्ञान है। दोस्तों, प्रोग्राम खत्म होने जा रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅੱਜ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਸੋਰੜ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਦੂਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ।